ஜெபம் செய்வோம். துதிகளின் மத்தியில் வாசமாயிருக்கிற எங்கள் சொன்ன நல்ல பிதாவே, இந்த புதிய நாளை எங்களுக்கு நீர் ஆசீர்வதித்து நீர் கொடுத்தக்காக நன்றியப்பா. காலையிலேருந்து இந்த வேலை வரும் எங்களை கண்ணின் மணியை போல நீர் பாதுகாத்ததுக்காக நன்றியப்பா. எங்களுடைய தேவைகளை எல்லாத்தையும் நீ சந்தித்து கொடுத்ததுக்காக நன்றியப்பா. நாங்கள் எங்கெல்லாம் சென்றோமோ, எந்த காரியத்துக்காக போனோமோ எல்லா காரியத்துக்கும் நீர் வெற்றிகரமாக நீர் பதிலளித்ததுக்காக நன்றியப்பா. இந்த வேலையில் கூட இந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த, வேதத்தில் இருக்கிற காரியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு நீர் கிருபை நன்றியப்பா. நாங்கள் பைபிளில் கூட வாசிக்கிறோம்ப்பா, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் அது உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொன்னது போல நாங்கள் உங்களுடைய சத்தியத்தை நாங்கள் அறிய, பைபிளில் இருக்கிற தெரியாத காரியத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள, அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை நீர் கொடுத்ததுக்காக நன்றியப்பா. இதன் மூலமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த காரியம் பயன்படுத்த, செயல்படுத்த, எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிற பாத்திரமாக எங்களை நீர் மாற்றப்புறக்காக நன்றியப்பா. எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ஐயாவே நீர் ஆசீர்வதிக்கப்புறக்காக நன்றியப்பா. நல்ல ஞானத்தையும் புத்தியும் நீர் கொடுக்கப்புறக்காக நன்றியப்பா. சரியான பாதையில் எங்களை வழி நடத்த நீர் கிருபை அளிக்கப்புறக்காக நன்றியப்பா. அந்த வேலையில் கூட பாடல்கள் வைத்திருக்கிற வசனங்கள் எங்களுக்கு நீர் ஆசீர்வதித்து நீர் கொடுக்கப்புறக்காக நன்றியப்பா. அந்த சிறு ஜபத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்கள் சொன்ன நல்ல பிதாவே, ஆமேன். நாம் யாவரும் ஈசிஐ பாடல் புஸ்தகத்தில் இருக்கிற 268வது பாடலை நாம் யாவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். நாம் யாவரும் உட்கார்ந்தவனமாக ஈசிஐ பாடல் புஸ்தகத்தில் இருக்கிற 268வது பாடலை நாம் யாவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சந்நிதானத்தில், குதூகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சந்நிதானத்தில், ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில், ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில், குதூகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சந்நிதானத்தில், பாவமெல்லாம் பறந்தது, நோய்களெல்லாம் தீர்ந்தது இயேசுவின் இரத்தத்தினால், பாவமெல்லாம் பறந்தது, நோய்களெல்லாம் தீர்ந்தது இயேசுவின் இரத்தத்தினால், கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு, கிருபையால் மீட்பு, பரிசுத்த ஆவியினால், கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு, கிருபையால் மீட்பு, பரிசுத்த ஆவியினால், குதூகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சந்நிதானத்தில், தேவாதி தேவன் தினம்தோறும் தங்கும் தேவாலயம் நானே, தேவாதி தேவன் தினம்தோறும் தங்கும் தேவாலயம் நானே, ஆவியான தேவன் அச்சாரமானார், அதிசயம் அதிசயமே, ஆவியான தேவன் அச்சாரமானார், அதிசயம் அதிசயமே, குதூகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சந்நிதானத்தில், வல்லவராம் இயேசு வாழ வைக்கும் தெய்வம், வெற்றி மேலே வெற்றி தந்தார், வல்லவராம் இயேசு வாழ வைக்கும் தெய்வம், வெற்றி மேலே வெற்றி தந்தார், ஒரு மனமாய் கூடி ஓசன்னா பாடி ஊரெல்லாம் கொடியேற்றுவோம், ஒரு மனமாய் கூடி ஓசன்னா பாடி ஊரெல்லாம் கொடியேற்றுவோம், குதூகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்,
எக்கால சத்தம் தூதர்கள் கூட்டம் இயேசு வருகின்றார். எக்கால சத்தம் தூதர்கள் கூட்டம் இயேசு வருகின்றார். ஒரு நொடி பொழுதில் மறுரூபமாவோம், மகிமையில் பிரவேசிப்போம். ஒரு நொடி பொழுதில் மறுரூபமாவோம், மகிமையில் பிரவேசிப்போம். குதூகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சந்நிதானத்தில், குதூகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சந்நிதானத்தில். हिंदी गाना किताब से हम गाना नंबर 261 261 नंबर का गाना हम गाएंगे, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। एक गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। गाना नंबर 261 पेज नंबर 93। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, वो शांति देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया। वो स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। இப்பொழுது நம்ம மத்தியில் இருக்கிற ஐயா அவர்கள் முன்பாக வந்து நம்மளுக்கு பைபிள் ஸ்டடியை நடத்துவார்கள்.
ஆமாம் ஆமாம் இருக்கட்டுமே இது முடிச்சிருவோம் அப்போ என்ன ओके सो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। इस तरफ आ जाएंगे ना, इधर रे बहुत जगह है। सो हमारा बाइबल स्कूल का स्टूडेंट्स भी विद्यार्थी भी आ गया लग रहा है। सुनील हाँ तू इधर आ गया वापस? अच्छा किधर नहीं गया, ठीक है ओके। सो लास्ट वीक में हमने मैं आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना, होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था आपको याद है? इसमें है, ठीक है। सो ये होमवर्क इसके अंदर है तो आप लोग समझ सकते हैं। तो दो बात बताया था, ठीक है। एक तो यहोवा और एक तो एल, ठीक है। ये ओटी में ओल्ड टेस्टमेंट में इधर है, ठीक है। मगर एल में क्या क्या आएगा ऐसा करके हमने बात किया था, ठीक है। अदोनी थियो इमानुएल ये एनटी में, ठीक है, एनटी में, ठीक है। इसमें से हम देखेंगे ओके क्या क्या। अच्छा इसमें यीशु है ना, यीशु दाना यीशु இது எங்க இருந்து வருது? इसका आवाज कहाँ से आ रहा है? यीशु इन पीरियड இது எங்க இருந்து வருதுன்னா इसका आवाज कहाँ से आ रहा है? यहोवा से आ रहा है, ओके। यहोशुआ ಇದು ಯೆಹೋವ था, ठीक है। सो यीशु ओके। सो मैं आपको ये बताया था, आप थोड़ा कुछ ढूंढ के लिखे हो करके। आप कुछ ढूंढा? नहीं ढूंढा होगा तो जाएंगे आगे, ढूंढा होगा तो बता दीजिए। கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சொல்லுங்க। एल एलियो एलोही एलिएजर एलिएजर एलोलम एलोहिम अदोनाई है ना इधर अदोनाई न्यू टेस्टमेंट में एलोलम इधर छपा एलोलम एलोहिम वेरे एलोलम वेरे वेरे ओके अच्छा ओके एलिएजर एलसडाई एलियोन एलरोई इरगा एलरोई एलोलम ओके। सो 4 बातें। उसके बाद में यावे आया यहोवा यहोवा जीरा इधर यहोवा जीरा आमा जेहोवा जीरे जेहोवा निसी कोडी ले यहोवा रफा यहोवा रूफा यहोवा शालोम यहोवा शम्मा यहोवा रोगी यहोवा सबात ओके सबात ठीक है। यहोवा इरे आ गया ना, आ गया, ठीक है। यहोवा सिटकेनो மேலே எழுதணும்। सिटकेनो मतलब नीति न्याय, ठीक है। सो ईश्वर का इतना नाम है। और
अदोनी अदोनाई 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 है ना एक्चुअली అది ఇది ఇంకోరు न्यू टेस्ट ओल्ड टेस्टमेंट ओटी अदोनाई न्यू टेस्टमेंट में क्या क्या है ठीक है न्यू टेस्टमेंट में क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ ओके सो न्यू टेस्टमेंट में थियो ठीक है कुरियोस कुरियोस द कुरियाकोस केरला में किसी किसी का नाम कुरियाकोस ठीक है और क्या है अब्बा अब्बा हाँ प्रभु अब्बा अब्बा मीन्स क्या है फादर अब्बा फादर अब और क्या है स्वामी इमैनुअल ठीक है और क्राइस्ट अरुटपुड़ियु पेट्टवर जो ये क्या है अभिषेकित किया हुआ ठीक है सो ये सब ईश्वर का नाम है जुना करार में नया करार में இப்போ எடுத்துடலாம் அழிச்சிடலாம் கேட்டுக்க எழுதிட்டாங்களா யாரும் எழுதணுமா ठीक है எழுதிட்டாங்களாம்மா ओके राइट अभी ईश्वर के बारे में लोगों की विचार या उसका सोच ठीक है ईश्वर के बारे में लोगों की विचार वरना ओके अच्छा क्या क्या है ईश्वर है वो एक विचार है और ईश्वर नहीं वो भी एक विचार है एक ही ईश्वर है वो भी एक विचार है नहीं नहीं बहुत है वो भी एक विचार है ठीक है सो ईश्वर है वो तूणिलुम इरुप्पान तुरुम्बिलुम इरुप्पान मतलब वो सब जगह में रहता है पेड़ में भी रहता है पत्थर में भी रहता है सब जगह में रहता है ठीक है सो लोगों की सोच लोगों की समझ अलग अलग रहता है ठीक है हम सब क्या करने वाले हैं ये तमिल क्लास पे हिंदी क्लास मारिचो ओके नो प्रॉब्लम पुरी உங்களுக்கு புரியுதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை புரியலாம் கேளுங்க ஓके अभी क्या हो गया है हमारा सोच हमारा विचार क्या है हाँ ईश्वर है क्या नहीं रे है ना परमेश्वर है ठीक है वो हमारा विश्वास है ओके अभी परमेश्वर है ओके परमेश्वर है वो कैसा तुमको पता चलेगा नंबर 1 अदा नंबर 1 था परमेश्वर है ना हाउ विल नो अच्छा नो ओके हाँ कैसे आपको पता चलेगा हाँ विश्वास ओके विश्वास ये विश्वास कहाँ से आता है हाँ ओके सो नंबर 1 विश्वास में उसको ये भी कह सकते हैं एक्सपीरियंस अनुभव बराबर ठीक है और कैसे हम ईश्वर को जान सकते हैं எப்படியெல்லாம் நம்ம கடவுளை வந்து அறிந்து கொள்ள முடியும் கடவுள் இருக்கிற संभव हाँ वो तो आ गया एक्सपीरियंस अनुभव में आ गया और चरित्र से या हिस्ट्री चरित्र मतलब क्या होता है कहाँ से तुमको चरित्र मिलता है हाँ स्क्रिप्चर इंगे हिस्ट्री स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर
ओके, बाइबल के द्वारा। और हाँ, थ्रू पेरेंट्स। ओके, सो மூணு பேரண்ட்ஸ் எழுதிச்சுக்க, த்ரூ பேரண்ட்ஸ். ம் 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 पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स. हाँ, पेरेंट्स, ये पेरेंट्स से कैसा आता है? पेरेंट्स से हमको कैसा आता है? चलो ओके, नंबर 1 वो लोग हमको टीचिंग देता है ना, टीचिंग. और कैसे आ सकता है? अदले और ना पा, हाँ टीचिंग. और कैसा आ सकता है? नहीं, पेरेंट्स से एक तरफ हमको उनका टीचिंग से आता है, उसके अलावा कैसा आ सकता है? नहीं, वो आ गया, टीचिंग में आ गया. हाँ, परिवर्तन. नहीं, परिवार से भी आता है. कैसा आता है? एक तो आ गया टीचिंग, थ्रू टीचिंग. ओके, और दूसरा कैसा आ सकता है? என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பந்தரித்தாள், இதோ நான். அப்படின்னா DNA क्या बोलते हैं उसको? खून. खून से भी आता है, ठीक है ना. अब अदलपा थ्रू ब्लडा टीचिंग அதுக்கடுத்து இங்கே மேலே அதிலே தான். பிளட்டா என்ன எழுதலாம்? DNA. ஹெரிடிட்டரி. அது இருக்கட்டும், பிளட் வேணும், அதில் வேணால் நம்ம அதை இது பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக எழுதுறே, உனக்கு மட்டும்தான் தெரிகிற மாதிரி. எஸ், வரேன். பெருசாக எழுதுப்பா. நீனு ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருக்க. ஓகே, நல்லா பெருசாக எழுதுனதுன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். என்ன எழுதுறது உனக்கு மட்டும் தெரியும், நீ படிக்கிற மாதிரி இருக்கியே. ओके, राइट. हेरिटेड मतलब खून से. ओके ओके, सो इसके अलावा कैसे हमको ईश्वर है कैसा पता चल जाता है? ये सब कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है. एक्सपीरियंस है ना, फेथ. उसके बाद क्या है? हिस्ट्री, स्क्रिप्चर के द्वारा. उसके बाद में पेरेंट्स, ना तो टीचिंग या तो ब्लड में हेरिटरी. चर्च, த்ரூ சர்ச். ஓகே, அப்போ அதை வந்து இது ஹிஸ்ட்ரியில் போட்டுடலாமா, ஸ்கிரிப்சரில் போடலாமா? ஓகே, ஸ்கிரிப்சர். ஓகே, சர்ச் ஸ்கிரிப்சருக்கு அடுத்து. ஓகே, வேற हमारा प्रेरणाएं, क्या बोलते हैं उसके हिंदी में? प्रेरणा. प्रेरणा, प्रेरणा मतलब क्या होता है? अदर्स. प्रेरणा होता है ना, ठीक है. प्रेरणा मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशन. यस, होली स्पिरिट का इंस्पिरेशन होता है, बोल रहे हैं इंस्पिरेशन. हम अपा 4 इंस्पिरेशन, ठीक है. होता है कि नहीं होता है? कभी कभी हम किस तरह भी फंस गया ना, अरे है एक, उससे कुछ तो बोलेंगे, वो हमारे लिए कुछ करेगा, है ना, इंस्पिरेशन, ठीक है. सो उसके अलावा यीशु मसीह कैसे उनको प्रकट किया? प्रकट किया ना. सो बाइबल में वही लिखा ना, क्या लिखा है? प्रकट किया. यीशु ने दुनिया में लोगों को क्या किया है? प्रकट किया. प्रकट किया ना.
मतलब प्रकट किया मतलब रेवलेशन, उसके हिंदी में क्या बोलता है बराबर? हाँ, प्रकाशन, एपर रेवलेशन, थ्रू रेवलेशन। 5 रेवलेशन, रेवलेशन जॉन कौन सा बोलता है उसको, ये प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण गुजराती माना તમે ગુજરાતી બાઇબલ લાવ્યા ને તમે હિન્દી જ વાપરે છે? ઠીક है સારું, મેં કાલે 2 દિવસ ગુજરાતમાં હતા એટલે હમણાં गुजराती सारा आवड़ी गया। ओके, सो मैं कल 2 दिन मैं गुजरात में था तो इसलिए गुजराती में, हाँ गुजराती में बोलना था, अभी इधर आके हिंदी तमिल। ओके राइट, ओके रेवलेशन, रेवलेशन ये जो कुछ आने वाला, जो कुछ होने वाला, वो सबको क्या है, जॉन को, योहान को ईश्वर ने क्या किया, प्रकट किया। ओके, कभी कभी कुछ लोग बोलते ना ईश्वर है ना, बाइबल में किस किस को ईश्वर ने प्रकट किया? प्रश्न पूछा रहे। हाँ, उसको जुना करर से हम बोलेंगे, जुना करर से बोलेंगे। नोवा, नोवाக்கு காமிச்சாரா, தரிசனம் கொடுத்தாரா? இல்லையே, கொடுக்கல, கூப்பிட்டு பேசினாரோ? ओके ओके, सो ईश्वर नूह के साथ बात किया, नूह के साथ बात किया, ठीक है। अब्राहम, कितना लोग थे? 3, ठीक है, 3 लोग थे, ठीक है। और किस किस को प्रकट किया? शायद मोसेस को प्रकट किया, हाँ मोसेस को प्रकट किया। फिर किसको प्रकट किया? जोशुआ से बात किया। याकूब, याकूब को भी प्रकट किया, वो सीढ़ी में चढ़ के जाना वो बाबर, ठीक है। और क्या है? आहार को प्रकट किया, पानी उधर है। और कौन है ये, उसका नाम क्या? और पैर ना सिम्सोना, सिम्सोन था ना, मनो मनो, हाँ गिडियोन को भी प्रकट किया। और द मनोवावा, सिम्सोन, सिम्सोन का पप्पा प्रकट किया। सो जुना करार में हमको बहुत मिल सकता है, ठीक है। अभी यीशु मसीह 12 चेलों को प्रकट किया। कब प्रकट किया? रिसरेक्शन, मतलब जब उन्होंने जी उठा, जी उठने के बाद उनकी 12 चेलों को यीशु मसीह ने क्या किया? प्रकट किया, ठीक है। और किसको किसको प्रकट किया? मरिया को प्रकट किया, मगदलेना मरिया, मरिया उनको। फिर किसको प्रकट, जो योसेफ, जोसेफ को, मरियम को। सो ये जो प्रकट है ना, ईश्वर है ना, कभी कभी क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, ठीक है। आजकल भी लोग बोलते हैं ना, ईश्वर को मैंने देखा, मेरे से बात किया, उसको क्या बोल सकते हैं? அதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? இன்றைக்கும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களா, நான் கடவுளை பார்த்தேன், கடவுள் என்கூட பேசினார், ईश्वर को मैं मिला, ईश्वर मेरे से बात किया। उसके क्या, कैसे वो बात करता है? विजन, இப்போ எழுதுப்பா विजन, ये 5 ये 5 ये विजन, विजन, विजन। ये विजन नया करार में कहाँ देख सकते हैं? एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 9, पौलुस ने एक विजन देख रहा है। विजन देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ठीक है, एक दर्शन देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ठीक है। और पीटर 10 अध्याय में विजन देख रहा है, पतरस। ओके, सो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, मैंने ऐसे रूम में था, इवन क्या नाम है, साधु सुंदर सिंह, उनकी इतिहास में भी एक मतलब बताते हैं, जब रात को 2 बजे के आसपास उसके कमरे में एक प्रकाश था, तो उसको देख के उन्होंने क्या किया? ईश्वर को अपना लिया। ओके, सो विजन। और कैसे ईश्वर लोगों के साथ, मनुष्य के साथ प्रकट करता है?
बराबर है, बोल। सपना, ड्रीम्स, सपना के द्वारा, ड्रीम्स अथवा बी, विजन, ड्रीम्स, है ना। सो ईश्वर को हम जानना हो, कैसे हम ईश्वर को जान सकते हैं? एक तो ऐसा बोल सकते हैं, ओके ना, नंबर 1 किधर है? थ्रू पेरेंट्स। पेरेंट्स है ना, खून से आ जाता है। उसके बाद उनकी टीचिंग। नंबर 2 मतलब हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, ठीक है, अनुभव। नंबर 3 बाइबल पढ़ने में, चर्च आने में क्या है, हमको एक्सपीरियंस मिलती है। फिर क्या है, नंबर 1 होगा तो नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 इंस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रेरणा, है ना, प्रेरणा, ओके। कभी कभी मीटिंग में जाता है, तब हमसे ईश्वर बात करता है, बराबर ना। हालेलुया, मैं ईश्वर आपके लिए सब कुछ करूँगा। ये गेट, नीचे एक गेट होने के बाद वो सब खत्म भी हो जाएगा। कभी कभी प्रेरणा खत्म भी हो सकता है, ओके। इंस्पिरेशन, फिर रेवलेशन, क्या रेवलेशन? विजन के द्वारा और ड्रीम्स के द्वारा। सो ईश्वर का जानने का बातों बहुत है कि नहीं? अभी भी मैं आपसे पूछूंगा तो आप लोग और भी बोल सकते हैं, ओके। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, ओके। सो और क्या, कैसे ईश्वर हमको प्रकट करता है? अभी तो बारिश गिर गया, बारिश गिरने के बाद क्या आता है? जमीन में से क्या आता है? नहीं सांप, हाँ? नहीं, हाँ, मट्टी में क्या आता है? प्लांट्स, कीचड़ नहीं, वो घास आता है। अरे क्या है, सांप बोल रहे हैं कीचड़ बोल रहे, घास निकलता है, ठीक है। ये घास है ना, आप रोज थोड़ा पानी डाल के उसको ऐसे खींच के मालिश करके उसको बड़ा कर सकते हैं क्या? बड़ा कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। सो इट्स नेचर। ईश्वर है ना, ईश्वर का गुण हम उधर से देख सकते, वाव, ठीक है। घास हो जाता है, फूल हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसके बाद? फॉर एग्जाम्पल आम, हाँ, केरी, इसके आम है ना, आम है ना हिंदी में, आम गुजराती में केरी है ना। सो आम है, आम को हम बीज डालते हैं, फिर वो बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, पेड़ हो जाता है। पेड़ होने के बाद उसमें से फूल निकलता है, फूलने के बाद क्या आता है? फल तो बाद में आएगा, आम निकलेगा। आम निकलने के बाद वो फल हो जाता है, ना। इसमें हमारा काम क्या है? हाँ, बीज डाला, और क्या डाला? पानी डाला, और क्या किया? खत भी डाला होगा, खत क्या बोलता है? खत डाला, ठीक है। इसके अलावा कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, ठीक है। रोज उधर बैठ के ईश्वर इसमें हजारों फल आना चाहिए ऐसा प्रार्थना करेगा तो भी 1-2 निकलेगा तो भी कुछ बोल नहीं सकता। बोल सकते क्या? कुछ नहीं कर सकता। सो ये सब कुदरत है। सो थ्रू नेचर कभी हम जाते हैं, अभी बारिश बहुत गिरेगा तो पहाड़ों में जाएंगे ना, उधर से पानी क्या बोलते हैं उसको, झरना, फॉल्स, झरना को देख के हम बहुत खुश हो जाता है। सो ईश्वर को हम कहाँ देख सकते हैं? कुदरत से भी देख सकते हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಇಯರ್ಕೈ ನೇಚರ್ ಥ್ರೂ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದು 6 ओके. और कुछ है? और कुछ है? नेचर के द्वारा भी वो गीत अदना पाट और நல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் பாட்டு ஒன்று உண்டுடா தம்பி. மலையில் போனேன், மலையில் காடுகளில் அப்படி அருவியில் ஓடைகளில் ஓ லார்ட் மை காட், அந்த वो गीत में ना ओ लॉर्ड माई गॉड, वो एक इंग्लिश गीत है. उस गीत में
बहुत अच्छा वो ईश्वर को देख रहा वो गीत लिखने वाला, ठीक है। अच्छा ठीक है। सो ईश्वर को हम कैसे देख सकते हैं वो सब बातों को हम अभी सीख लिया। ओके, सो இதுக்கான நம்ம ஒரு ஹெட்டிங் கொடுக்கலாம், எசன்ஸ் ஆஃப் காட். எசன்ஸ் ஆஃப் காட். சாரி, எக்ஸிஸ்டன்ஸ், நாட் எசன்ஸ், எக்ஸிஸ்டன்ஸ். existence and knowledge of God. Existence and knowledge of God. ओके, लिख दिया, हो गया। तुम लोग तुम्हारा नोटबुक किधर है? नहीं लाया अभी, लेने का, नेक्स्ट क्लास में आएगा तो लेने का। अभी तुम दोनों को एग्जाम है, बाकी किसी की एग्जाम नहीं है। इसमें पास हो गया तो तुमको मार्क देंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट। ओके ठीक है, ये सब बना रहे नोट लेने का। तब तो दिमाग, हमारा दिमाग बहुत छोटा है, कभी अंदर रहता है, कभी चला भी जाता है। नोटबुक में लिख के रखेंगे ना, बहुत अच्छी है। ओके, सो इधर ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? इसमें कोई प्रश्न है? इधर ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? प्रश्न है? और इसके साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं, अब ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है एसेंस, எசென்சியல் நேச்சர் ஆஃப் காட். இது அழிச்சிடலாம். அடுத்த டாபிக் வந்து எசென்சியல் நேச்சர் ஆஃப் காட். एसेंशियल नेचर ऑफ गॉड. तुम लोग उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, समझ गए रहे? अभी हिंदी में तो मैं बोल रहा हूँ, उधर तो लिखते तो इंग्लिश, मुंह में से हिंदी आ रहा है ना, तो हिंदी शब्द में भी लिख सकता है. ओके, एसेंशियल नेचर ऑफ गॉड. ओके, पढ़िए भजन संगीता 145, क्या बोलते हैं 145 गुजराती में, एक तो 45 है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? 45. हाँ, एक एक्चुअली मेरे को हिंदी में इतना ये नहीं आता, मगर गुजराती में अच्छा आता है सब कुछ, ठीक है. भजन संगीता 145, उसका 3 कलम से 18 कलम तक पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत बाबत लिखा है, ठीक है. நான் அங்கே போனாலும் அங்கே இருக்கிறீர், இங்கே போனாலும் இங்கே இருக்கிறீர், சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் போனாலும் இல்லை, அதான் அந்த வசனம். उसमें क्या लिखा है? मैं उधर जाएगा तो अब इधर है, इधर जाएगा तो भी उधर है, ठीक है. जब मैं मेरा माँ की गर्भ में से मुझे अब जानता है, उसके बारे में बहुत लिखा है. सो कैरेक्टर ऑफ गॉड, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, ईश्वर सब कुछ जानने वाले, ऐसा करके लिखा ना. थोड़ा 1-2 वचन पढ़ो, उसके बाद में हम जाएंगे. तीसरा कलम से पढ़ रहे. हाँ, ओके, ठीक है. सो ये ईश्वर का क्या है, बहुत उसका गुणों के बारे में लिखा गया. ओके, फिर पढ़ो यूहान उसका 17 अध्याय 3 कलम. यूहान 17 अध्याय 3 कलम पढ़ो. ओके, यीशु मसीह आनंद जीवन के लिए भेजा गया है. ओके, ठीक है. ओके, अभी मैं पूछ रहा हूं आपको एसेंशियल नेचर ऑफ गॉड. नेचर ऑफ गॉड है ना, नेचर ऑफ गॉड. नेचर ऑफ गॉड में ईश्वर का नेचर में क्या क्या है? கடவுள் எப்படி இருக்கிறார்? என்னம்மா சொல்லுங்க. லவ். ஓகே, இல்லை அவர் எப்படி இருக்கிறார்? காட் இஸ் லவ். ஓகே,
வரும், ஆனால் கொஞ்சம் பின்னால் கொண்டு போகலான்னு பார்க்கேன், उसको थोड़ा पीछे என்னம்மா एवरलास्टिंग। नंबर 1 पहला हम ये समझना है, हमारे बुद्धि को या हमारे बुद्धि में हम उसको माप नहीं सकते। கடவுளை நாம் நம்முடைய இதில் அளக்கவே முடியாது। ईश्वर को हम अभी कभी भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते। बियॉन्ड हमारा जो सोच, हमारा विचार, हमारा सब कुछ है ना, उसके वो बाहर है, बाहर है ना, बाहर है क्या ना, ठीक है। नंबर 1 है परमेश्वर है, वो आत्मा है। आत्मा है क्या नहीं, தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார்ப்பா, அதுக்கு பேர் என்ன, स्पिरिट। गॉड इज स्पिरिट। उसके लिए वचन पढ़ो, जॉन चैप्टर 4 23-24। அந்த அம்மாட்ட சொல்றாருல, समय आता है, हाँ, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सो ईश्वर आत्मा है और उनका हम आराधना करना हो तो आत्मा से और सच्चाई से करना है, ठीक है। सो गॉड इज क्या, पहली बात क्या है, स्पिरिट, ओके। नंबर 2 गॉड इज तमिल என்ன சொல்றடா, एवरलास्टिंग, ओके, राइट। सो नंबर 2 है உயிர் உள்ளவர், एवरलास्टिंग। எப்படி போடலாமாடா, एवरलास्टिंग, ஓ உயிர் உள்ளவர், லிவிங், மரணமே கிடையாது அவருக்கு। அவன் சொன்ன அந்த एवरलास्टिंग வந்துடும்। there is no death, there is no beginning, अल्फा ओमेगा। ईश्वर कैसे है, अल्फा भी है, ओमेगा, उसको एवरलास्टिंग, उसको मरण ही नहीं है, आमा लिविंग गॉड, ओके। सो लिविंग गॉड, அதுக்கு வசனம் சொல்லுவோமா, जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 26। யோவான் 5वां अध्याय 26 कलम। क्योंकि जिस रीति से हाँ। पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवित रखे। ठीक है, जीवित रखे, ओके। जीव நானே என்ன சொல்ற, ஒளியா, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், எஸ் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன்। ஜான் சாப்டர் 14 verse 6, ஓகே। ஸோ நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், ஆமாம், ஜான் சாப்டர் 14 verse 6 இதிலே ரெவலேஷன் அல்பா ஒமேகா, அது எங்கே இருக்குது, 22ஆம் அதிகாரமா, மேபி 22, அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறேன்। 1:11, ஓகே, 1:11 ரெவலேஷன்। Okay, so everlasting or living God. Number 3, நம்ம 8ஆம் வசனத்தில் இருக்கான்। ओके, सो अभी हमारा ईश्वर நம்மலாம் எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா, உதாரணத்துக்கு நீங்கள் டீச்சர் சார், நீ என்னடா ஸ்டூடெண்டா, என்ன ஸ்டூடெண்ட்ரா, இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட், அவன் என்ன स्टूडेंट, कंप्यूटर, ओके, ठीक है। अभी हम अपना अपना काम है, हम उसमें हम एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कैसे टीचिंग करना, सो मैडम का आता है, ठीक है। इंजीनियरिंग, कौन सा इंजीनियरिंग,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक के बारे में उसको मालूम है, उसको कंप्यूटर के बारे में मालूम है, ठीक है, सबका अलग अलग मालूम है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे को थियोलॉजी आता है, चर्च हिस्ट्री आता है, दूसरा हिस्ट्री नहीं आता है, चर्च हिस्ट्री आता है, टीचिंग भी आता है, प्रीचिंग भी आता है। अभी मैं मैकेनिकल इंजीनियर, उसमें कुछ भी नहीं आता है, मेरे को कुछ भी नहीं आता है। और वो कंप्यूटर इंजीनियर है, उसमें भी मेरे को कुछ नहीं आता है, ठीक है। से हम एक में एक्सपर्ट हो सकता है, सब में एक्सपर्ट नहीं है, बराबर ना। कभी मेरे को कुछ डाउट है, जाके मैकेनिकल इंजीनियर से मैं जाके पूछ सकता हूँ, अरे बाबू ये कैसा है, ऐसा हो रहा है मेरा गाड़ी, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा पूछेगा ना, वो बोलेगा जनपा, वो बोलेगा वो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। मेरे लिए अच्छा है, वो अजीब है, जानता नहीं, उनका जानकारी है। कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं उनसे जाके पूछ सकता हूँ, अरे भाई तो कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, क्या करने का। वो अंकल कुछ नहीं, वो कुछ वो हो गया होगा, ये हो गया होगा, ऐसा करके कुछ तो वो आइडिया बताएगा, बराबर। मतलब ईश्वर जानता है कि नहीं जानता है। हम सब ना தமிழ்ல சொல்ல போனா அரகுறை, हिंदी लेने சொல்லுவாங்க தெரியலையா, अधूरा, अधूरा अधूरा, हम सब अधूरा है, एक में एक्सपर्ट है, एक कुछ भी नहीं आता है। और ईश्वर ऐसा नहीं, सब में वो एक्सपर्ट है, वो अधूरा नहीं, நிறைவானவர்। उसको हिंदी में क्या बोलता है, पूरा, पूर्ण, पूर्ण, संपूर्ण, ओके, संपूर्ण, ईश्वर संपूर्ण है। माती लकेली स्वार्थ 5 अध्याय 48 48 कलम में क्या लिखा पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर, அதில் இல்லை, அடுத்து மூணாவது இது, फुलनेस ऑफ गॉड। सिद्ध है, सिद्ध ना என்னம்மா பெர்ஃபெக்ட், ஓகே। தமிழில் என்ன எழுதியிருக்கு, நீங்கள் தமிழ் பைபிள் தானே வச்சுருக்கீங்க, பூரண சர்க்குர், ஃபுல்னஸ், ஓகே, ஃபுல்னஸ்। இப்போ வசனம் எழுதலையா, मैथ्यू 5:48, ओके। ये हमारे में नहीं है ना, फुलनेस हमको बस, हमारे पास नहीं है ना। तेरे जंगल में क्या है तुमको आता है, मेरे को नहीं आता है, कहाँ कहाँ क्या ये है वो नहीं आता है। और मेरा उधर आएगा तो मेरा गांव में एक नदी जाता है, नदी में किधर क्या है, ऊंडाई मतलब गहराई है, किधर पत्थर है, वो सब मुझे मालूम है, ठीक है। बाहर से जाने वाला को नहीं पता। सो टोटली है क्या है, किधर हम हैं, कहाँ है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। इनका गांव में टाइगर है, इसके गांव में मैं गया, ठीक है। कौन सा गांव रे, खोखा, खोखा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का, भंडारा डिस्ट्रिक्ट, नागपुर के पास। सो बालू भी है ना, बालू है, टाइगर है, और क्या क्या है, चीता, सब कुछ है उनका जंगल में, ठीक है। वो हम समझ गया, फुलनेस, ओके। उसके बाद में इतना नंबर को 4 नंबर में है, ईश्वर क्या है, पढ़िए यशाया प्रवक्ता की पुस्तक 40 अध्याय 25 कलम, आइज़ाया चैप्टर 40 वर्सेस 25, आइज़ाया 40:25। ओके, हिंदी में क्या लिखा भाई, हाँ, ओके, इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी भी नहीं बोल सकता, किसी के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकता है। அவர் வந்து யார் கூட என்ன செய்ய முடியாது, कंपेयर பண்ண முடியாது, अनकंपेयर, नाल வந்து अनकंपेयर, कंपेयर नहीं பண்ண முடியாது। हाँ, कभी कभी स्कूल बच्चे लोग ना
பிரின்ஸு என்னடா படிக்கிற, அவன் பாரு அவன் எவ்வளோ அழகாக படிக்கிறான், நீ படிக்கவே மாட்டேக்கேடா, சரியா? அல்லது நீ தோ உன் பேர் என்ன பேர்றா, ஸ்டீவ். ஸ்டீவ் வீட்டில் சொல்லுவாங்க பிரின்ஸ் எவ்வளோ அழகாக படிக்கிறான், நீ ஏன்டா படிக்க மாட்டேங்க. அங்கே என்ன சொல்லுவாங்க, स्टीव एवढा अलगा पढ़िक्रा नी अंडा पढ़ी के मारे कंपैरिजन, एक दूसरे को क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है ना। कभी कंपेयर नहीं होना, हम भी हमारे बच्चे लोगों को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एक बच्चा का उसका स्टाइल अलग रहेगा, दूसरा बच्चा का स्टाइल अलग रहेगा, इनका स्टाइल उनमें नहीं देखने का, उनका स्टाइल इनमें नहीं देखने का, ठीक है ना। कभी कभी क्या स्कूल में क्या होता है, तेरा भाई बहुत अच्छा है, जो ऐसा नहीं है, ऐसा बोलते टीचर लोग, ठीक है, टीचर लोग, ठीक है। और तेरा छोटा भाई बहुत अच्छा है, अच्छा खेलता है, ठीक है। तुम्हारा बड़ा भाई अच्छा पढ़ रहा है, तू क्यों ऐसा नहीं पढ़ रहा है। कभी कभी है ना कंपैरिजन होता है, ईश्वर का कंपैरिजन नहीं है, ओके। कांट बी कंपेयर्ड, ओके, कंपेयर பண்ண முடியாது, ரைட்டா। அப்புறம் வந்து उसके बाद में ईश्वर क्या है, आनंद काल का है। आनंद काल मतलब எவர்லாஸ்டிங் வந்துடுதோ, பைபிளில் வாசித்து பாருங்க, நம்ம நித்தியமானவர் சாம்ஸ் 92, भजन संगीता 92, क्या लिखा है, अनादि काल आनंद काल। इंग्लिश என்ன மாதிரி இருக்கு, எவர்லாஸ்டிங்கா, அதான் எவர்லாஸ்டிங், எவர்லாஸ்டிங்। அப்போ இது நம்ம தப்ப போட்டோமோ அந்த எவர்லாஸ்டிங், லிவிங் காட் தான் கரெக்ட், கரெக்டா। அப்போ இந்த எவர்லாஸ்டிங் தூக்கி கீழே போட்டுடலாம், everlasting. ओके, और क्या क्या हो सकता है, ईश्वर का गुण हमारा गुण में बहुत फर्क है। क्या क्या गुण हम में नहीं, क्रिएटर, क्रिएटर, सो हम क्रिएट नहीं कर सकते। होली, होली इज वेरी इंपॉर्टेंट है, आर होली। पहला सामेल दूसरा अध्याय दूसरा कलमा, पहला सामेल दूसरा अध्याय दूसरा कलम, पढ़ो रे। கர்த்தரை போல பரிசுத்தம் உள்ளவர் இல்லை। अच्छा, ओके, கீழ எங்க இருக்கு, 1 சாமுவேல் 2:2, ठीक है। हिंदी में पढ़ो, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। हम सब पापी हैं। कहाँ से पापी हैं, என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பந்தரித்தார், சாம் 51ல, संगीतम 51 தானே, 8 5, ओके। भजन संगीता 51:5, என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பந்தரித்தாள், இதோ நான் துர்க்குணத்தில் இல்ல அப்படி வராது, என்ன வருது அப்படி, இதோ நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன், என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பந்தரித்தாள்। அடுத்த வசனம் ரொம்ப விரும்புகிறேன், அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன், ஓகே। सो भजन संगीता 51:4-5-6 पढ़ो। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक करे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपने माता की गर्भ से गर्भ में पड़ा,
ஓகே ரைட். அப்போது நம்ம பாவிகள் இல்லையா, हम सब पापी है ना. ओके, सो यीशु मसीह पाप नहीं किया, इसलिए यीशु मसीह पापी लोगों के लिए क्या हो गया, मरा. ठीक है, அவரிலே எந்த விதமான களங்கமும் இல்லை இல்லை. அதுனா ऐसाया 53 ऐसाया 53 में ऐसा लिखा है. क्या लिखा है, निर्दोष இல்லை, निर्दोषा. 53 தானே, 4ஆம் வசனமாக பாருங்க. மெய்யாகவே நம்முடைய பாடுகளை ஏற்று நமக்கு சுமந்தார். அடுத்து குணமாகிறோம். ஓகே, सो मे बी 4 और 5 में है. ठीक है, ஸோ மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார், நாமோ அவர் தேவனால் அடிக்கப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது, அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். ஸோ होली गॉड ईश्वर है वो चैप्टर 9 वर्स 9 भी 9 पढ़ो. नहीं वही 53:9 में ऐसा है. अच्छा 12 कलम पढ़ो, 12 कलम पढ़ो. इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूटपाट करेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया. वह अपराधियों के संग गिना गया, तो फिर उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया. ठीक है, सो ईश्वर पापी नहीं परंतु पापी लोगों के लिए मरा. सो होली होली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ईश्वर का क्या है, गुणों, ईश्वर की गुण के बारे में पढ़ेंगे, ईश्वर की गुण. ओके, सो यहाँ तक अब मैंने आपको पढ़ाया, इसमें कुछ प्रश्न है वो तो पूछ लो. ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம், பிரின்ஸ் கூட கேட்கலாம். या नहीं तो इसके साथ कुछ ऐड बहुत कर सकता है, इसमें बहुत कर सकता है, बहुत ऐड कर सकता है, मतलब जोड़ सकता है. वो पापी मतलब वो पवित्रता. हमारे भजन संगीता 103 அது என்னது, சங்கீதம் 103 அதில் என்ன எழுதியிருக்குது, நம்முடைய பாவங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு செய்யாமலும் நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்கு தக்கதாக சரி கட்டாமலும் இருக்கிறார். ओके, सो जो भजन संगीता 103 में ऐसा लिखा है, हमारे पापों के कारण हमें वो क्या नहीं किया. पढ़ रहे भजन संगीता 103 इतना 9 8 9 103 3 3 पढ़ो. वही तो मेरे सब अधर्म के क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता है. वही तो पत्ता तेरे नाम को नष्ट होने से बचा
10 पढ़ो, 10 पढ़ो। उसने हमारे पापों के अनुसार हाँ, हमसे व्यवहार नहीं किया। और न हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। वाह, अच्छा है ना। कभी बेन, बेन का नाम क्या? खनू, सोनू, सोनू। कभी आपका बच्चे को मारा? मारा ना? क्यों मारा? हाँ? गलती किया, और वही बाइबल में लिखा है वो कभी नहीं मारता। है ना? से अच्छा ना, गलती से हमारा कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर है, सुधारना, बच्चे लोग को सुधारना। बाद में बच्चे लोग क्या नहीं बोलेंगे, अब इतना पिल्ला तो कैसा बच्चा को पालन किया, ऐसा कोई हमारे ऊपर क्या टोस नहीं डराना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बचपन से उनको क्या है सिखाते हैं। ईश्वर का वचन कहता है वो गलती को मानेगा ऐसा नहीं लिखा, हमने जितना गलती करते हैं उसका क्या है अनुसार हमें दंड नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, ये अरब देश में क्या होता है, ये आपने किया होगा तो ये ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक गलती किया तो उसका एक उंगली ना, उंगली ना हिंदी में उंगली, गुजराती में आंगली, ठीक है, गुजराती में आंगली, हिंदी में उंगली, मराठी में रे अंगूठा, बोटा, अच्छा ठीक है। सो उंगली है, हिंदी में क्या बोला था, अंगली, उंगली, उंगली, ठीक है, उंगली, वो उंगली एक गलती के लिए इतना इतना काटना है, तो हमारे जिंदगी में कितना ये रहेगा, उंगली भी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब काटा जाएगा। उसमें ऐसा लिखा वचन में, நம்முடைய சரிக்கட்டாமல் இல்லை என்ன இருக்கு இந்த தமிழில், நம்முடைய பாவங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு செய்யாமலும் அக்கிரமங்களுக்கு सरी कट्टामलम இருக்கிறார்। उसका मतलब ये है ईश्वर हमारा पापों के कारण हमें दंड नहीं देता, क्षमा करने அவ்வளோ தூரமாக நம்முடைய விளக்கினார்। அது இன்னொன்று வரும் ஒரு வசனம், என்ன சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே கொண்டு போட்டுருவார்னு கூட ஒரு வசனம் வரும்னு நினைக்கிறேன்। ஓகே, என்ன என்ன கேரக்டர்ப்பா? ஹோலி, இப்போ ஒரு கேரக்டர் சொன்னது மன்னிக்கிற கேரக்டர், फॉरगिविंग, நம்மட फॉरगिविंग இல்லையே, கடவுள்கிட்ட இருக்கு। ईश्वर हमारे पास क्या है, क्षमा करने का शक्ति नहीं, फॉरगिवनेस, क्षमा करने का शक्ति ईश्वर के पास भी है, ठीक है। ओके, सो और भी ईश्वर का क्या क्या गुण है, क्या 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 है, एसेंशियल नेचर ऑफ गॉड क्या क्या है, वो थोड़ा आप सोच के नेक्स्ट क्लास में आ सकता है, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। ओके, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमने प्रभु आज आपके नाम के बारे में, आपके नाम में क्या क्या है वो सब के बारे में हमने जानकारी लेने के लिए अपनी कृपा किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और आपको कैसे हम जान सकते हैं, अनुभव के द्वारा, हमारा माँ बाप के द्वारा, हमारा बाइबल पढ़ने के द्वारा, चर्च में आने के द्वारा, और कुदरत के द्वारा, ऐसे प्रभु हमने आज पढ़ा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ में आपकी कैरेक्टर्स, मनुष्य में जो नहीं है उन्नत और उचित जो गुण आपके पास है, उसके बारे में भी हमें जानकारी लिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, क्षमा करने वाला है, निर्दोष है, पाप नहीं है। वैसे प्रभु बहुत आपके पास है, आप क्रिएटर है, आप हमारे सोच समझ से ज़्यादा आप बड़ा है, उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, हम आपको बड़े सोच समझ के साथ समझने के लिए हमें कृपा कर, हम सबका आशीर्वाद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा की संगति सदा काल हमारे साथ रहे, आमीन आमीन। इन आत्मावे थैंक यू